You're live now. Assalamualaikum. I'm your host Farah Sahiba and you are watching PNY. Welcome to new episode of PNY Facebook live series. I hope so all of you are fine. Today we are having Mr. Ihtisham Amir with us, who is the aviation consultant and career counselor also. But before starting our interview, there is a brief introduction of PNY. PNY is a group of company which is working under three categories: PNY Training, PNY Advertising, and PNY Pink. PNY Training is the company which provides you different courses related to IT. It includes PNY Web Development, PNY Art and Design, Digital Media Marketing, Media Production, Cybersecurity, and Networking. Accounts, catering service of online classes. So no matter where are you can contact our representative and register yourself. Next category is PNY Advertising. They provide you best service at your home. If you want to advertise your business, your service, your product, you can contact us and get best service of digital marketing service. Next category is PNY Pink. This is related to ladies. They provide you different courses related to self grooming, makeup, etc. The purpose of PNY group of companies is to provide you best service at your home. Thank you so much, sir, joining with us. And now it's time to start our interview with you. We are having Mr. Ihtisham Amir with us, who is the aviation consultant and career counselor also. And the topic of our discussion is importance of career counselor. So now we can start our interview with sir. Assalamu alaikum sir, how are you? कैसे हैं आप? Walaikum salam. Thank you very much. बहुत शुक्रिया for having me. जी सर, जैसा कि सब जानते हैं कि आप करियर काउंसलर भी हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वह इम्पोर्टेंस ऑफ करियर काउंसलिंग। तो सर सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप पहले क्या करते थे और फिर लाइफ में क्या क्या चला और आजकल आप क्या कर रहे हैं और यहाँ तक आप कैसे आए हैं। मैं by training I'm a soldier. मेरा ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से था। मैं 1985 में I was commissioned in Pakistan Army as an officer. 1988 में I switched and started flying army aviation में. That was a major career shift for me because I was not enrolled as a pilot initially. फिर 88 से जो एविएशन का सफ़र शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह when I retired in 2015, so throughout army में I kept progressing. अल्हम्दुलिल्लाह I retired at the rank of brigadier. और उस दौरान में मुझे फ्लाइंग का मौका मिला, जहाज़ों का, हेलीकॉप्टर्स का, और पाकिस्तान में तकरीबन पूरे पाकिस्तान में फ्लाइंग की, जिसमें सियाचिन से लेकर गवादर तक आप कह सकते हैं। ऑपरेशंस में, लॉजिस्टिक्स में बहुत मौके मिले। फिर ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहा। मैं पाकिस्तान आर्मी के एविएशन स्कूल में इंस्ट्रक्टर था, PF अकेडमी में इंस्ट्रक्टर रहा। और उसके बाद जो थोड़ा सा जब हम राइज करते हैं आर्मी में, एविएशन में, रैंक्स में, तो फ्लाइंग थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाती है और फिर आप मैनेजमेंट साइड पे ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। एंड आर्मी लाइक ऑल अदर डिपार्टमेंट्स इज ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट। और मैन मैनेजमेंट में आप सबसे बड़ा जो चीज़ अपने सबॉर्डिनेट्स का जो आप उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं, वो उनको आप करियर काउंसिल कर सकते हैं। बिकॉज जो आपकी अपनी सर्विस सीनियरिटी बढ़ती है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है। Experience is what you have learned over a period of time and seeing people making mistakes. So उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए हम अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को, या जो हमारे कोलीग्स होते हैं, उनको आप एक इनफॉर्मल एंड फॉर्मल दोनों कैरियर काउंसलिंग का काम चलता रहा। विद एन आर्मी उसके बाद एज आई ग्रू बिकेम फुल कर्नल एंड देन ब्रिगेडियर, तो मैं एविएशन के अलावा मैं लॉजिस्टिक्स में भी आ गया। आई वाज एट माई रिटायरमेंट पे मैंने एक नई करियर शुरू करना था, नई इनिंग शुरू करनी थी। बिकॉज आर्मी में आपकी 60 ईयर्स एज पे रिटायरमेंट नहीं होती, आपकी रैंक की जो सर्विस है उस हिसाब से है। तो ब्रिगेडियर की 30 ईयर रैंक सर्विस है, वट एवर योर एज इज एट दैट टाइम। सो एट 50 आई कुड नॉट हैव रियली गॉन बैक टू माई होम एंड सेड कि ठीक है जी, नाउ आई वुड लीड अ रिटायर्ड लाइफ। सो मेरा जो थोड़ा सा एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस था
मैंने उसको अप्लाई किया, तो जो पाकिस्तान का जो पहला और वाहद प्राइवेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सियालकोट एयरपोर्ट, मैं उसका जी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तैनात हुआ। इट वाज अ कम्पिटिटिव पोजीशन, और बड़ा उसमें वहाँ पर सीखने का मौका मिला, डिलीवर करने का मौका मिला, क्योंकि पाकिस्तान में सिविल एविएशन सारे एयरपोर्ट्स ऑपरेट करती है, तो ये वाहद एयरपोर्ट है जो प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी इसको चला रही है। वहाँ मैंने कुछ अर्सा गुजारा। तो ठीक है। यहाँ इस्लामाबाद में पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट एयर चार्टर कंपनी अस्करी एविएशन, उनकी सीईओ की वैकेंसी थी, अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह गॉट सिलेक्टेड। ये इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज व्हिच वाज लुकिंग आफ्टर द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ एविएशन, यू नेम अ थिंग एंड वी हैड इट। उसमें एयर टिकटिंग थी, उसमें हेलीकॉप्टर चार्टर था, उसमें वाइड बॉडी बड़े, जिसे हम बोइंग का जहाज कहते हैं, वो चार्टर थे। हम पाकिस्तान आर्मी को जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे, आम तमाम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते थे, ट्रेनिंग स्कूल, सो यू नेम अ थिंग इन एविएशन एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर डूइंग इट। इसमें अगेन जो मौका मिला करियर में ग्रो करने का, तो एक चीज समझ में आई कि जो करियर बिगिनर्स होते हैं, उनको बजाय कि वो रूमर्स के ऊपर चले, इसने कह दिया यार ये लाइन अच्छी है या ये चीज अच्छी है, उसको बजाय जो सीनियर्स हों, वो अगर अपने तजर्बे और अपनी एजुकेशन जो उन्होंने हासिल की हुई है, लाइक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा एडवांटेज हुआ, मैंने बिफोर माई रिटायरमेंट आई रियलाइज के अभी मुझे जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो कोई मुझसे मेरी मिलिट्री क्वालिफिकेशन तो नहीं पूछेगा। सो मैंने मास्टर्स किया मैनेजमेंट का, और उसमें एचआर में मैंने उसमें मेजर किया था। तो विद दैट एजुकेशन वो मैंने अप्लाई किया जब मैं सियालकोट एयरपोर्ट पे रहा, फिर जब मैं अस्करी एविएशन में रहा। मीनवाइल थोड़ा सा चूंकि टीचिंग की तरफ थोड़ा शौक था, वो कैप्टन से शौक शुरू हुआ था, तो वो चलता आ रहा था, और बाद में हर रैंक पे मौका भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग का। सो मैंने साथ में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू किया। इट वाज मोर ऑफ सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट एंड अबाउट करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग का एक शोबा अभी तो कुछ यूनिवर्सिटीज इसको सीरियस ले रही हैं, स्टूडेंट्स अफेयर डिवीजन या स्टूडेंट्स अफेयर्स के नाम से डिपार्टमेंट बनते हैं, और डिपार्टमेंट की उसकी जो स्ट्रेंथ है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, कुछ यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे हैं, कुछ में अभी बिल्कुल शुरू हो रहे हैं। हाउएवर इस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ मैंने करियर काउंसलिंग में, बट मैं अभी तक इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ये काम कर रहा हूँ, मोस्टली इट इज एट अ लार्ज स्केल। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप कह लीजिए। बिल्कुल सर, आज के जी थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और जैसा कि अभी आपने बात की कि कोई आपको कहता है कि इस फील्ड में चले जाएं, और कोई कहता है कि नहीं आप इसमें चले जाएं, तो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि करियर काउंसलिंग का जो प्रॉपर मीनिंग है वो हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग क्या होती है। दे जस्ट थिंक कि हमें टीचर ने कह दिया, पेरेंट्स ने कह दिया, तो यही हमारी काउंसलिंग है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे भी प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ये दूसरी करियर काउंसलिंग से किस तरह डिफरेंट है? देखिए, करियर काउंसलिंग जब हम इंटरनेशनली भी देखते हैं तो ये कोई एक अनलाइक इंजीनियर्स या डॉक्टर्स, ये वो एक लीगली प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन है। अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, पाकिस्तान में तो क्या ही कहना, जो करियर काउंसलर का जो ओहदा है, ये कोई भी आदमी ये टाइटल इख्तियार कर सकता है। इसलिए क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, तो इसलिए इसमें प्रोफेशनलिज्म की भी कमी है। आपने अगर डॉक्टर बनना है तो आप पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का जो अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेज है उसमें जाएंगे, 5 साल का प्रेस्क्राइब कोर्स करेंगे, फिर आप हाउस जॉब करेंगे, फिर आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं। बट करियर काउंसलिंग में जिसका भी दिल चाहे वो ये काम कर सकता है, और ये सब पाकिस्तान में नहीं है, ग्लोबली ऐसा है। लेकिन इसका, इस ओपननेस का जहाँ थोड़ा नुकसान है, वहाँ एक फायदा भी है। फायदा ये है कि अगर आप लाइक, मैं अगर आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस 30 इयर्स का मिलिट्री का करियर का था। वहां पर भी करियर काउंसलिंग होती है, वहां पर भी आपने अपने करियर पाथ चूज करने होते हैं। 1988 में जब मैं आपको बताया, जो मैंने फौज ज्वाइन की थी, वो मैंने इन्फेंट्री ऑफिसर ज्वाइन किया था। मैंने एक अपने करियर में मेजर मूव किया था। I opted to become a pilot. उस वक्त जो मेरे पीयर्स थे उनमें से किसी को भी नहीं पता था ये इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। फ्लाइंग का शौक था, मौका मिला तो आगे सिलेक्शन प्रोसेस में अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। उस प्रोफेशन के हैजर्ड्स भी हैं।
वो राइट। उसको बताने वाला कोई नहीं होता था। तो जो कुछ मैंने सीखा, अगर मुझे अभी इसकी कोई सर्टिफिकेशन करनी पड़ती तो शायद मैं कैरियर काउंसलिंग में कभी ना आता। अब इसमें आसानी भी है, जैसे आप बिल्कुल। हैं, आप अगर मीडिया, नाउ यू आर हैंडलिंग मीडिया इन वन वे और द अदर, सोशल मीडिया स्पेशली, तो आप अगर कंसल्टेंसी राइट। या काउंसलिंग देंगी, तो अब एक अगर आपको मजबूर किया जाए, नहीं जी आपने ये प्रेस्क्राइब कोर्स है आप ये करें, एक तो वो ठीक है, फायदा है, लेकिन आपका जो अपना जो जाती आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका वैरायटी है, एक्सपीरियंस है। वो भी फिर आपका वो इफेक्ट हो जाएगा। सो करियर काउंसलिंग इस लिहाज से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दिया, ये कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कोई बहुत रेगुलेटेड नहीं है, और कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इसमें आपको वैरायटी लोग मिलेंगे, राइट। जैसे थोड़े से जो पुरानी उम्र के लोग भी, ज़्यादा उम्र के जिन्होंने एक्चुअली नौकरियां की हैं, कारोबार किए हैं, और थोड़ी उम्र गुजारी है, और उसमें आपको यंगस्टर्स भी मिलेंगे जो मीडिया सेवी हैं, सोशल मीडिया को अच्छा इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन पे ज़्यादा तेज हैं, वो भी उनकी उनकी आउटरीच ज़्यादा है। लेकिन एक बुनियादी चीज़ याद रखने की है कि करियर काउंसलिंग जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे समझी जाती है, वो करियर काउंसलिंग नहीं है। आपकी 3 स्टेजेस हैं करियर की। पहली स्टेज जहाँ पर प्रोफेशनल या स्कूल्स एंड कॉलेजेस या पेरेंट्स को भी उनको फिक्र होना चाहिए, वो जब बच्चा क्लास 10 से नीचे है, आप उसकी बिल्कुल, शख्सियत को वहां पर जांचने की कोशिश करें, उसकी ये क्या बेस कर बन जाए ताकि। एग्जैक्टली। हम लोग जिस जनरेशन के हैं, आई डिड माई मेट्रिकुलेशन इन 1981, आई एम प्रीटी ओल्ड। उस जमाने में करियर चॉइसेस ही नहीं होती थी। अच्छा जी, और उस जमाने में बायो वाज कंपल्सरी टिल मैट्रिक, सो एवरीवन हैड टू स्टडी बायो। सो आपके पास चॉइस थी, आप डॉक्टर बन जाएं, यहाँ पे इंजीनियरिंग ज्वाइन करें या जो भी। तो पेरेंट्स के पास 4-5 प्रोफेशन होते थे, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ, अच्छा कुछ नहीं किया तो फौज में चले जाओ। तो ये 3-4 प्रोफेशन होते थे, और जो बेचारे उसमें भी नहीं होते थे, फिर तुम टीचिंग शुरू कर दो। सो अब दुनिया ऐसी नहीं है, लेकिन हम पेरेंट्स वही वाले हैं जो उस जमाने के हमारी सोचे हैं। अभी हमें वाकई आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनकी भी जरूरत है, जो इस फील्ड में आए, जिनको ज्यादा हम आईटी को एक लफ्ज में समोने की कोशिश करते हैं। आईटी बहुत बहुत वसी फील्ड, बहुत वसी। वास्ट है। मैं भी इसको पूरा बिल्कुल। नहीं जानता, इट्स सो वास्ट। कोई भी इसको नहीं कह सकता अनलेस कोई बंदा आईटी में। अब आईटी की एक एप्लीकेशन बायो साइड पे भी है। there are so many career opportunities. अभी कमिंग बैक टू, ये पहला जो स्टेज ऑफ करियर काउंसलिंग है, वो पेरेंट्स अपने आसपास किसी एक्सपीरियंस बंदे को देख के वो अपने बच्चे को पहली काउंसलिंग वहां उसको, दैट्स द फर्स्ट स्टेज। आपकी अपनी फैमिली में कोई हो, आपके जो टीचर्स में कोई हो, या स्कूल्स में। अभी तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि जहां स्कूल ये जिम्मेदारी लेना सीखे। बिल्कुल। I'm saying up to high school, which is FSC level. इससे नीचे नीचे पहली काउंसलिंग होनी चाहिए, जहां बच्चे को पता हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। एक बच्चा जो बेचारा स्टैमर करता है, वो कल को कहे जी मैंने मीडिया में आना है, मेरा दिल बड़ा कर, तो उसके लिए उसका पैशन जरूर होगा, शायद वो ओवरकम भी कर ले, लेकिन ये एक मुनासिब फील्ड उसके लिए नहीं होगी। और अगर एक कोई इस तरह की कोई भी चीज, एक मैं कई मिसालें दे सकता हूं जो बाद में कहीं जिक्र हुआ। तो पहली स्टेज तो वहां है जहां पर बच्चे के पैशन को आइडेंटिफाई करें, पेरेंट्स भी उसमें बैठे, टीचर से पूछें, और फिर बच्चे से पूछें भी बता तेरी रजा क्या है, तुमने क्या करना चाहते हो, छवि तुम इसमें अच्छे हो, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, इसमें ज्यादा चांस है। उस स्टेज पे देखें, अगर पेरेंट्स को बहरहाल बच्चे से ज्यादा पता होता है, बच्चे का 15 साल 16 साल की उम्र जो एक्सपोजर होगा पेरेंट्स का, वो उसकी उम्र कम से कम 42-43 ईयर्स है। उन्होंने ऊंच नीच देखी होती है, अपना कैरियर में भी ऊंच नीच देखा हुआ है, आसपास लोगों का, फैमिली का सुना हुआ है। सो लिविंग इट ऑल टुगेदर टू अ चाइल्ड इज ऑल्सो बैड, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। आई वुड नॉट कॉल इट बैड, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। बच्चे का पैशन, और वो पैशन वो नहीं होता कि जो बच्चा एकदम 10वीं में आके कि ये तो मेरा पैशन है। पैशन वो होते हैं कि जो आपने क्लास 2-3 में वो अपने रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, और 6वीं-7वीं में बच्चा उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता माइल। अगर कोई बच्चा पेंटिंग्स की तरफ जाना चाहता है या आर्ट की तरफ जाना चाहता है, तो वो एकदम 10वीं के इम्तिहान से फारिग होने के बाद छुट्टियों में नहीं करेगा। उसमें ये जरासीम क्लास 3-4 में होंगे, अच्छी ड्राइंग करता होगा या करती होगी,
ये पेरेंट्स उस स्टेज पे देख सकते हैं कि जी ये हमें ये बच्चे का रुझान क्या है। एक so that is the first stage. Second is your high school, your FSC level, A levels. That's the time you are actually at the बिल्कुल आप अपना करियर जो आपका लाइफ को डिफाइन करेगा उसको आपने चूज करना। वहां पर अगेन कोई हमारे पास प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं होती। पेरेंट्स भी शायद कई जो मेरी कई स्टूडेंट से बात भी हुई है यूनिवर्सिटी में, मोस्टली ये एक वॉइड है। मैं आपको यूके की बताता हूँ रिसर्च का, हमारा तो छोड़े, हमारे पास तो शायद ऐसी रिसर्च भी अवेलेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंट स्टूडेंट्स थे जब उनसे पूछा गया, 45% ऑफ देम सेड वी हैड नो आइडिया व्हाई वी वर चूजिंग दिस करियर। हमें कोई प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं मिली हुई। आई एम टॉकिंग ऑफ यूके 2018 की उनकी एक रिसर्च है, मैं आपको उसका हवाला दे रहा हूँ। इवन सर यूनिवर्सिटी लेवल में जब एडमिशन होता है तो बच्चों से पूछना चाहता है कि आपने यहाँ पे एडमिशन क्यों लिया है, और उनका आंसर होता है कि हमें कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा था इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। तो ये हालात हैं, मतलब कि पहले बच्चा मैट्रिक कर रहा है साइंस में, अपने फ्रेंड्स को देखे जो हमने डॉक्टर बनना है, एफएससी कर लिया, एफएससी में आते हैं तो देखते हैं बड़ा मुश्किल है, मेरिट नहीं बन रहा। फिर मेडिकल के स्टूडेंट्स आईटी में बैठे हुए हैं, बिजनेस में बैठे हुए हैं। तो ये हालात हैं हमारे। अगर स्टार्ट से हमें एक गाइडलाइन दी जाए तो कितना बेहतर हो जाए करियर के लिए, बहुत बेहतर हो जाता है। अभी बिल्कुल आपकी ऑडियंस के लिए और आपके लिए, विद नो ऑफेंस टू यू और टू योर जेंडर, when I was doing my management degree, I did masters in public administration, MPA. तो यूनिवर्सिटी में जो मैं आई वाज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट इन दैट क्लास। वहां पर दो बच्चे थे जो मेरे एक्चुअली मेरी बेटी से बस साल एक बड़े थे। आउट ऑफ माय वो बड़ा रिस्पेक्ट करते थे मुझे एल्डर की भी। इधर मैंने क्लास में सर्वे किया कि आप लोग एमपीए क्यों किया, कोई और क्यों नहीं किया मास्टर्स। उसमें 2-3 रुझान मिले। एक तो थे जो प्रोफेशनल्स थे, बैंक में जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर हमें मास्टर्स की डिग्री करेंगे तो हमें पे राइज मिलता है, हमें और मैनेजमेंट की होगी तो हमारा प्रमोशन बढ़ जाता है। वंडरफुल, समझ में आता है। एक दो ने कुछ और वजूहात बयान की। एक लड़की थी, उसने बड़ी मजे की वजह बयान की। उसने कहा सर वो मेरी जो ये फ्रेंड है इसने दाखिला लिया तो मैंने भी इसके साथ दाखिला ले लिया। तो अब अगर ये आप मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स मीन आपको ऑलरेडी उस सब्जेक्ट का अच्छा खासा नॉलेज है, अब आप उसमें स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वेरी वेरी सीरियस सब्जेक्ट। तो ये हमारा, ये मैं आपको प्रोफेशनल काउंसलिंग यूनिवर्सिटी लेवल पे बता रहा हूँ कि बिल्कुल वॉइड है। बिल्कुल हमारी प्रायोरिटीज जो है वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि हमने अपनी बेस पे ही प्रायोरिटीज बनाई हुई है कि फलां कर रहा है तो कर लो, फ्रेंड्स कर रहे हैं तो कर लो, पेरेंट्स ने कह दिया तो कर लो। मतलब देखा नहीं जाता कि बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं और वो क्या करना चाहता है, बस जहाँ पे उसको एडमिशन मिल रहा है वो ले रहा है। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो क्या करें, मतलब कि दूसरों को देख के कहते हैं हमने डॉक्टर बनना है, जब फील्ड में जाते हैं ज़्यादा उनसे स्टडी भी नहीं किया जाता, कम्युनिकेशन उनकी अच्छी होती है या वो किसी और लेवल पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको इनिशियल लेवल पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि मेरे में क्या क्वालिटीज़ हैं, या उसके लिए करियर काउंसलिंग ही बेहतर है? देखिए इसमें 2-3 तरीके हैं। पहली चीज तो मैं थोड़ा सा इस सवाल को मैं थोड़ा सा इसे डाइग्रेस करूंगा। देखिए एजुकेशन को हम जब भी फाइनेंस के साथ या इकोनॉमिक्स के साथ लिंक करेंगे ना कि ये मुझे पैसे कमा के देगा, तो थोड़ा सा उसका पर्पस डिस्टॉर्ट हो जाता है। आप बिल गेट्स को देख लें, दुनिया का अमीर 3 आदमियों में से एक आदमी है, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है। मार्क ज़ुकरबर्ग है, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है। उसने फेसबुक बना के अरबों डॉलर कमा के फिर उसने अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कंप्लीट की। आपके इल्म में होगा। एंड देयर आर सो मेनी। अमेरिका का पिछला जो वजीर खारजा था रेक्स टिलरसन, उसने 42 साल 42 ईयर्स एक कंपनी में तेल बेचा था। जैसे हमारी पीएसओ शेल है तो उनकी अमेरिका की कंपनी थी, उसमें 42 ईयर्स उसका करियर वाज इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी एंड ही बिकेम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। सो आपका, और वो बाय एजुकेशन ही वाज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। तो आप, मैं सब जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो एजुकेशन है, आप एजुकेशन चाहे आप डॉक्टर बने, मेडिकल एजुकेशन आप समझते हैं कि आपने कर ली है, लेकिन इसको जब आप कहेंगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है, मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। आपको अब किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, पहले तो ये है, देखिए जो ये करियर काउंसलिंग है, इसका पहला तो इंसान को खुद पता होना चाहिए मैंने क्या करना है।
वो एक डिमेंशन जैसे ना आपको अपने पैशंस का, अपने शौक का पता चलना शुरू हो जाता है, पेरेंट्स आपको बता सकते हैं। दूसरा, आप इसलिए सबसे पहले जो कहा जाता है वो ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आप काउंसलिंग करते हैं तो वो भी एक स्टेजेस में एक तरीके से होती है, और उसका वो एक एब्रीविएशन सी बनी हुई है सोडा के नाम से, SODA। सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। यू मस्ट नो व्हाट यू आर। मैं अगर अभी आज मैं कहूँ कि मैं कबड्डी सीखना चाहूंगा, तो मैं शायद 20 उम्र में मैं अपनी हड्डियां लड़ा लूंगा, मैं करियर मैं भी उस उम्र में नहीं चेंज कर सकता। सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। फिर आपको ऑप्शंस, नेक्स्ट इज ऑप्शंस, ऑप्शन अवेलेबिलिटी। बीटा चार्ली ऑप्शंस रखनी चाहिए आपको। अल्फा बिल्कुल आप रखें। आप सोचें अच्छा मेरे पास ये ऑप्शंस है, मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं इस चीज में थोड़ा कमजोर हूँ, मैं इसको कैसे, मैं इसमें से क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं। आजकल आपके पास इंटरनेट की शक्ल में जो सहूलत है कि आप अगर आप अपने जो भी आपकी सोच है उसको आप अपने पहले कागज पर लिख लें, मैंने करना क्या है, फिर आप फोकस्ड सर्च करें, फोकस सर्च करें, तो आपको कई जवाब वहीं पर ही मिल जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आप जब फिर आप डिसीजन भी तो करना है ना। अब आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे आ गए, लेकिन अब आपने डिसीजन, जो आप डिसीजन फेज में जाएं, वहां पर हो सके तो प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग, वो कहीं से जो कंसल्टेंट है उनसे रब्ता करें। स्टेप 1 वही है आपका, तरीकाकार वही है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, जो आपको आइडेंटिफाई करके कुछ ना कुछ दे सकते हैं। लेकिन उसका जो बहरहाल उनके पास बाज़ दफ़ा हर टीचर्स के पास या हर कॉलेज के जो लेक्चरर के पास, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो थोड़ा सा फिर भी इसका अरेंजमेंट है, कॉलेज पे नहीं होता। दे डू नॉट नो दी जॉब मार्केट। लाइक पाकिस्तान में ईयर 2000 से लेकर 2008-7-8 तक एक ट्रेंड आया, एवरीवन वाज डूइंग मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज, मास्टर्स इन IT, एंड अभी इतने ज्यादा लोग IT के हैं कि उनके पास शायद उतना काम नहीं है, तो अभी और नए से नई चीजें आ रही हैं। अब हार्डवेयर में लोग नहीं जा रहे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्यादा जा रहे हैं। सो एक फ्लड हो जाती है एक मार्केट का एक सेगमेंट। अब जो कंप्यूटर साइंसेज में जो 3 जो मेजर है, नेटवर्किंग है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में ज्यादा लोग चले जाते हैं, नेटवर्किंग में और हार्डवेयर इंजीनियरिंग में कम जाते हैं। सो उधर हमेशा कमी रहती है उन 2 डिपार्टमेंट्स में या उन 2 स्पेशलिटीज में, और आपका सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा लोग मिल जाते हैं। उसके फायदे भी हैं, अभी दुनिया में जो भी ऐप्स बन रही हैं, जो भी तरीकाकार जो भी हैं चीजें, उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है। एक जमाने में पाकिस्तान में 90s में एक ट्रेंड आया था, एवरीवन स्टार्टेड डूइंग MBA विदाउट रियलाइजिंग कि इसका इस्तेमाल क्या करना। बस उनको था कि हमारे साथ MBA लग गया तो हमारा बड़ा नाम है, बड़ी वैल्यू। राइट। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जो पाकिस्तान से बाहर, जिसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, वहां पर लोग अपनी जो बैचलर्स डिग्री BS जो भी हमारे पाकिस्तान में जो 4 साल का प्रोग्राम है, ये करने के बाद जॉब करते हैं। जॉब में 3 से 4 साल गुजारने के बाद MBA करते हैं, बिकॉज आपने जो स्पेशलाइज करना है आपको पहले पता तो हो। थ्योरेटिकली अगर आप BBA के बाद MBA कर लें तो आपके हाथ में एक्सपीरियंस तो बाहर नहीं आएगा ना, सिर्फ आपके पास एकेडमिक नेचर का एक रिसर्च, एक प्रोजेक्ट या कोई इस तरह की चीज होगी। तो जो यहाँ से मैं जो लिंक करना चाह रहा था कि यूनिवर्सिटीज में तो फिर भी स्टूडेंट अफेयर्स के नाम से जो डिपार्टमेंट है, वहाँ टीचर्स आपको कुछ किसी किस्म की करियर काउंसलिंग, करियर गाइड्स दे सकते हैं, उनसे कंसल्ट करें। आपने स्टेप 1 में अपने आप को सेल्फ अवेयर किया, फिर आपने ऑप्शंस को लोकेट किया, सर्च किया, पेरेंट्स से कंसल्ट किया, इवन पीयर्स के साथ, दोस्त हैं जो आपके, वो आपको कोई किसी बारे में बता सकते हैं। देन थर्ड इज योर लेक्चरर्स। अगर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है आपका स्टूडेंट अफेयर्स एंड काउंसलिंग का, जरूर उन्हें कंसल्ट करें, उनसे मशवरा करें अपने। और दूसरा ये है कि फ्लेक्सिबल रखना है सोच को। लाइक मैं आपको मेडिकल की मिसाल, जैसे आपने कहा, आज से कुछ अर्सा पहले तक MBBS करके आप हाउस जॉब करके यहाँ अपना क्लिनिक खोल सकते थे, यहाँ गवर्नमेंट जॉब को आप ढूंढें। अभी पब्लिक हेल्थ साइड पे बहुत लोग आ सकते हैं। देयर आर वेरियस नेशनल इंटरनेशनल NGOs जो पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट में काम करती हैं। जो हम सारी वैक्सीनेशंस देख रहे हैं, या जो पोलियो कैंपेन्स हैं, इसको पीछे कोई प्लान भी तो करता है ना, कि पोलियो वैक्सीन कहाँ बनेगी, कैसे ये इसकी जो कोल्ड लॉजिस्टिक चेन है वो कहाँ पर आएगी, कितने घर हैं एक घर में, यहाँ इस इलाके में कितने लोगों ने काम करना है,
ये पब्लिक हेल्थ पॉलिसी भी तो कोई बना रहा है हमारे मुल्क में, वहां भी डॉक्टर्स चाहिए। सो आपके पास अभी ऑप्शंस हैं। सो अगर एक डॉक्टर है तो वो सिर्फ ये ना करे कि जी मैं तो सिर्फ अभी क्लिनिकल काम ही कर सकता हूँ। देयर आर फार मोर ऑप्शंस फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट आल्सो। यू ओनली हैव टू ओपन अप योर माइंड। एक्सपोज करने की ज़रूरत है। मतलब जी स्टूडेंट्स को हाँ, आइडिया नहीं होता कि हम एक डिग्री करने के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट में जॉब्स होती हैं, खुद भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन दे जस्ट नीड अ गाइडलाइन। तो करियर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्कूल लेवल पे भी और इंटर लेवल पे भी, इवन आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अच्छा सर, देयर आर मेनी पेरेंट्स जो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आपने यही बनना है, हमारे तो फैमिली में डॉक्टर का बैकग्राउंड है, आर्मी बैकग्राउंड है, तो जी आपने आर्मी में जाना है, आपने डॉक्टर ही बनना है। कोई सिंगर बनना चाह रहा है, कोई कुछ बनना चाह रहा है। तो पेरेंट्स को क्या लगता है, आपको ज़रूरत है उनको भी थोड़ा गाइड करने की कि बच्चों को थोड़ी फ्रीडम दें, और कैसे उनको गाइड किया जाए? देखिए मैं आई एम अ फादर माई सेल्फ। आप जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो एकदम तो वो 5 साल की उम्र से 20 साल की उम्र पे नहीं पहुंचेगा ना। वो आपके साथ, आप उसको देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। अगर आप समझते हैं, और आप एक, और हर पेरेंट रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होते हैं, हर पेरेंट, माँ हो बाप हो, हर पेरेंट रिस्पॉन्सिबल पेरेंट है। बिकॉज ये एक बहुत रिश्ता है जहां पर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बच्ची उनसे आगे बढ़े, एक्सेल करे, मटीरियल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हर चीज में हम उनसे बेहतर हो। ये एक बहुत रिश्ता है ऐसा। तो जब आप रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हैं और आप समझते हैं कि कल को मैंने इस बच्चे बच्ची को, अपने चाइल्ड को इस करियर की तरफ मैंने डायरेक्ट करना है, तो फिर उसको छोटी उम्र से डायरेक्ट करें। एग्जैक्टली। आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि जब उसने एफएससी, उसने बायोमी की, और आप कहें नहीं मैंने तो तुम्हें उसमें केमिकल इंजीनियरिंग में भेजना था। तो आप, फिर ये एक डिस्कनेक्ट है। अगर आप एक उस वक्त, और प्रॉब्लम क्या हो रही होती है कि जब बच्चा 7th 8th वाली एज से ऊपर आ रहा होता है, तो वो इंटरनेट को एक्सपोज हो चुका होता है। वो अपनी राइट। एक अपने सोच भी, शौक भी बना रहा होता है। यूजुअली जो फादर उस एज पे थोड़ा वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर बिटवीन 40 to 50 वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो उनका बाज दफा फोकस फोकस अब बच्चे के करियर चॉइसेस डेवलप करने की तरफ नहीं जाता। पेरेंट्स को, जो भी आपके ये प्रोग्राम के तवज्जुह से सुन रहे हैं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, मेरा उनको मशवरा जो ये होगा कि आप बड़े हैं, आप समझते हैं कि दुनिया इस वक्त इस चीज की डिमांड है जॉब मार्केट में। तो आप राइट। अपने बच्चे के लिए आज से शुरू करें, सर्च शुरू करें, रिसर्च शुरू करें कि 5-10 ईयर्स में किस चीज की ज्यादा डिमांड होगी। अभी हमें एक 2020 में पता चल गया कि जो कन्वेंशनल जॉब्स थी वो खत्म हो गई, बिल्कुल। ऑनलाइन जॉब्स आ गई हैं। 1 जनवरी 2020 को दुनिया कुछ और थी, 1 जनवरी 2021 को दुनिया कुछ और है। दुनिया कुछ और है। दुनिया ने ऑनलाइन ट्रांजिट करना था, लेकिन इस एक साल में जो टाइम पीरियड 5-7 साल था, वो कंप्रेस होके एकदम नई नई एप्लीकेशन, ये जूम आज से साल पहले पाकिस्तान में बहुत कम लोग इससे वाकिफ थे, बट अब घर घर में हर बच्चे बच्चे को पता है जूम नाम की चीज है, एप्लीकेशन है। सो पेरेंट्स को अगर उन्होंने थोड़ा सा फ्यूचर में देखना है, उन्होंने खुद अपने बच्चे के लिए करियर रिसर्च करना है, और फिर जिसको वो समझे, चाहे वो आपने कहा ना फैमिली प्रेशर है, हमारे फैमिली में तो जी डॉक्टर बनना है, तुमने तो इंजीनियर बनना है, तुमने तो पुलिस में जाना है, तुमने आर्मी में जाना है, या तुमने सिंगर बनना है, वो ठीक है। वो उसको आप बेशक उसके लिए उसको कहें ये तुम्हारे एक ये और एक कोई और गोल ऑप्शन दे दें, और फिर उसको उसकी तरफ डायरेक्ट करें। ऐसे प्यार प्यार से उसको, अगर आप समझते हैं कि आपने उसको वहां लेके जाना है मंजिल की तरफ, फिर आप उसको उस तरफ लेके जाएं, उसके ऊपर थोपे ना। बिल्कुल, उसकी भी इंटरेस्ट को आप उसमें ऐड करें, और उसका बचपन से ही उस चीज़ में जी इंटरेस्ट हाँ। आप ऐड करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा बताएं कि स्पेशली ये क्वेश्चन जो है मेरा बॉयज़ कम्युनिटी के लिए है, कि पाकिस्तान में अभी भी ऐसा है कि देयर आर मेनी मेल कम्युनिटी जिनका होता है कि हमने बिजनेस में जाना है, और इनको लगता है कि हमें तो पढ़ाई की ज़रूरत है ही नहीं, हमने तो जी बिजनेस करना है, हमें क्या ज़रूरत है पढ़ाई की। हम मतलब वो अपनी तरफ से शो करते हैं कि वो बहुत अमीरज़ादे हैं या उन्हें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ही जाहिलाना कॉन्सेप्ट है कि पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे वो जितना भी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, पढ़ाई की ज़रूरत तो हर किसी को है, चाहे आपने इवन पढ़ाई के बाद शादी ही करनी है, लेकिन पढ़ाई की तो ज़रूरत हर इंसान को है। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपने बिजनेस भी करना है तो आपको स्टडी की इंपॉर्टेंस कैसे आप उनको थोड़ा सा
पाकिस्तान में इसके लिए बड़ी खूबसूरत मिसाल, अनफॉर्चुनेटली वो अभी कारोबार एग्जिस्ट नहीं करता, निराला स्वीट्स था। निराला स्वीट्स जो हाजी साहब थे जो लाहौर के, वो अंदरून शहर में उनकी एक छोटी सी निराला स्वीट की एक दुकान होती थी। उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया, उन बेटों ने निराला को पाकिस्तान का टॉप ब्रांड बना दिया था। निराला अब तो बंद हो गया, आई डोंट नो, अभी बहुत सारे लोग शायद जो बहुत यंग होंगे से वाकिफ भी नहीं होंगे। 2010-11 में को उनका आपस के कुछ फैमिली के मसाइल हुए, कुछ बिजनेस के मसाइल हुए, बिजनेस क्लोज्ड। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में मिठाई अगर का ब्रांड था जो पेशावर से लेकर कराची तक पहचाना ब्रांड के तौर पे जाता था, जिसकी ब्रांड रिकग्निशन थी, वो निराला स्वीट्स था। अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ें तो उन्होंने क्या किया, हाजी साहब ने, जो जिसने अपने वो शुरू किया था, उसने अपने बेटों को पढ़ाया। उसके 1 या 2 बेटों ने, मुझे अभी याद नहीं कौन कितनों ने, एक ने MBA किया, उसने वो अपनी उस नॉलेज को अप्लाई किया। और उसकी मैं उसके आई वाज रीडिंग दैट केस स्टडी, बड़ी इंटरेस्टिंग उसने चीज लिखी। उसने कहा कि हमें ये तो पता था कि मिठाई पाकिस्तान के कल्चर में इस्तेमाल होती रहेगी, लेकिन जो जिसको आप एलीट कहते हैं, ये जो ऊंचे घराने हैं, जो मालदार हैं, जहाँ पर हेल्थ कॉन्शियसनेस है, यहाँ पर कि जी शुगर हो जाएगी तो हमने इनटेक कैलोरीज कम करनी है, तो इनको मैं कैसे अप्रोच करूँ, इस मार्केट को टैप करूँ। इस साइड मैंने थोड़ा सा अपनी प्रोडक्ट को रीडिजाइन किया, एक सर्विंग का साइज छोटा किया, जो मिठाई जो बर्फी या बालूशाही या जो भी थी उसका साइज थोड़ा सा वजन कम कर दिया, और उसमें हल्की सी स्वीटनिंग कम की, और उसको ब्रांडिंग पे इतना जोर दिया था कि अगर आप किसी के घर अच्छे जो ऊंचे घराने या जो ऊंचे फंक्शंस पे अगर आप निराला की मिठाई लेके नहीं जाते थे तो पीपल वुड एक्चुअली लुक डाउन अपॉन यू। निराला स्वीट एक ऐसी चीज बन चुकी थी। सो ये है पढ़ाई का फायदा। आप अगर कारोबार करना करें। हाँ, अगर आप, जो आपका सवाल था उसमें जब मैं सुन रहा था तो जो मुझे उसका जवाब फौरन ज़हन में आ रहा था वो मैं अभी दूसरे हिस्से के लिए बचा कर रखना चाहता हूँ। अगर कोई बंदा नहीं पढ़ना चाहता तो आप उसको जबरदस्ती ना पढ़ाएं, नहीं, वो अपनी जिंदगी को खुद वो खराब करेगा, बिकॉज पढ़ाई का किसी भी किस्म के इल्म का आपको नुकसान नहीं, फायदा ही होता है। फायदा ही होता है, क्योंकि जो चीज़ आप स्टडी से सीखते हैं वो आपकी पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे हर जगह काम आती है। हर जगह काम कम्युनिकेशन अच्छी होती है, आपको लाइक उठने बैठने की तमीज़ आती है, आपका नॉलेज वास्ट हो जाता है, आपको बात करनी आ जाती है, मार्केटिंग टैक्टिक्स आ जाते हैं आपको कि आपने क्या मार्केटिंग अप्रोच यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि कोई भी करियर है उसमें कुछ ना कुछ स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, तो कौन सी ऐसी जो स्पेशली हर किसी में होनी चाहिए? देखिए, ये एक बड़ा छुपता हुआ और दुखता हुआ सवाल है, बिकॉज जब मैं आर्मी से रिटायर हो गया, जो मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब की, या मुझे उसका ये वहाँ आके एहसास हुआ, हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो निसाबी तालीम, करिकुलर एक्टिविटीज पे तो बहुत फोकस है, बट जिसे को करिकुलर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसकी तरफ अप्रोप्रिएट फोकस और एम्फेसिस नहीं है। अब कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो आप किसी भी जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप फ्रीलांस ऑनलाइन काम कर रहे हैं तब भी दुनिया में आपको उसकी जरूरत रहेगी। दुनिया में एक यूनाइटेड नेशन का ज़ेली इदारा है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो हर साल अपनी स्टडी करता है और आपको बताता है कि अगले 5 साल या अगले 3 साल में जॉब मार्केट में स्किल्स की किसकी डिमांड होगी। उसमें उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा कि हम हर 2 साल बाद आपको ये बताते थे, बट वी रियलाइज्ड कि देयर आर स्किल्स कि जो आपको हर जॉब में हर वक्त चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, आपने ये जो आपका PNY ट्रेनिंग है, आप ऑनलाइन इंटरव्यू करना चाह रही हैं, अगर आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल पे अबूर नहीं है तो आप ये काम भी नहीं कर सकते। आपने ऑनलाइन अगर कोई फ्रीलांस काम करना है तो आपने कस्टमर को अपने क्रेडेंशियल्स बेचने हैं, सेल करने हैं, ठीक है। आपने उसका काम समझना है, और जो आपने काम किया है, बिकॉज जो इस तरह की जो मतलब वो फ्रीलांसिंग में लिखने का काम है या ग्राफिक आर्ट का है, डिजाइनिंग का काम है, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। एक कॉन्सेप्ट दूसरे को कम्युनिकेशन
बिल्कुल। नीड से ही होता है। और जब आपने जो चीज़ प्रोडक्ट तैयार की है, जो ग्राफिक डिज़ाइन तैयार की है, उसको आपने कस्टमर को बेचना कि ये वही चीज़ है जो तुमने मुझे डायरेक्शन दी थी, इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। ये आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आपने फ्रीलांस भी करना है, या आपने नौकरी करनी है, या आपने कोई भी काम करना है, फिर आपको आपको राइट। जो एडेप्टेबिलिटी विद एनवायरनमेंट, जिसको आप लोगों के साथ आप मिलके टीम वर्क, अब टीम वर्क एडजस्ट हो आप इफ जाना। यू आर अगर आप फ्रीलांस अकेले बैठ के काम कर रहे हैं तो और चीज है, बट अगर आपके पास एक भी आपका बॉस है और एक भी आपका कोवर्कर है, तो आपको टीम वर्क भी सीखना है कि मैंने काम कैसे डिवाइड करना है, राइट। मैंने टाइमलाइंस कैसे बनानी है, मैंने कहाँ पर फर्म होना है, कहाँ पर मैंने पोलाइट होना है। बिल्कुल। ये आपने स्किल्स सीखने हैं, और ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगी आपको। ये आपने अपनी सराउंडिंग से, अपने पेरेंट्स से, एंड दूसरा खुद पढ़ के सीखने हैं। इसके लिए आज के दौर में तो आपको यूट्यूब है, और आप गूगल करें, इस पे इतना कुछ मिल जाएगा कि फिक्र करना मसला बन जाता है। बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल्स है, बिल्कुल। सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये आपने हर हालत में सीखना, हर हालत में सीखना। राइट। ओके। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि एक कैंडिडेट को पता चल गया है कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है, उसने वो स्टडी भी कर ली है, डिग्री भी कर लिया, फिर जब वो आगे प्रोफेशनली काम करने जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है, डिफरेंट बैरियर्स होते हैं, तो वो उनको कैसे डील करे? देखिए, कोई जो ओवरनाइट सक्सेसेस हैं, वो 1 इन अ बिलियन स्टोरी होती है। राइट। आपको हमेशा लैडर को लोएस्ट रंग से एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है, एक एक बिल्कुल। सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। इसके लिए, और ये आपको टाइम लगता है। कारोबार राइट। भी अगर आप कर रहे हैं, तो कारोबार में भी ये नहीं है कि जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया तो अगले दिन आपको 1 बिलियन का ऑर्डर आ जाएगा। आई सेड कि यस, वो जो होता है जैकपॉट लगना, वो एक बहुत कम चीज है, वो बहुत बहुत कम होता है, बहुत रेयर केस है। बहुत रेयर केस है। होता है। ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप जिसने जब बनाया था, तो उस जमाने में 2009 में बहुत सारे इस तरह के ये वाले जो वेब बेस्ड मैसेजिंग सर्विसेज आई थी, बट इसकी जो यूनिक चीज थी, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन था। और उस वक्त, और ही वाज द वन जिसका जो उसका सॉफ्टवेयर जिसने डिजाइन किया था, उसको याहू ने अपनी जॉब से निकाल दिया हुआ था, तो उसने उसके बाद ये बैठ के बनाया था। तो जब से 2009 में बनाया, तो उस वक्त तो स्मार्टफोन नए नए आ रहे थे। उसको पहले 2 साल तो कोई किसी किस्म का प्रॉफिट नाम की कोई चीज नहीं आई, लेकिन जब उसने बेचा तो वो $19 बिलियन का उसने व्हाट्सएप बेचा है। ये प्रोडक्ट है, जैकपॉट लगा। लेकिन कितने, व्हाट्सएप एक ही बना ना, लेकिन आपको मेहनत आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाने के लिए, आपको जगह बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है। राइट। कोई भी ओवरनाइट सक्सेस इस दुनिया में नहीं है। और देखिए, हम इसकी मिसाल सबसे बड़ी देख सकते हैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से। वो अल्लाह ताला की महबूब तरीन हस्ती थे, सबसे अफजल नबी थे। उनको 23 साल तक तबलीग करनी पड़ी थी, उसके बाद इस्लाम फैला था। बेशक। उन्होंने कोई दुआ पढ़ के, कोई फूक मार के इस्लाम नहीं फैलाया था, 23 साल की मेहनत की थी तबलीग में। तो उनके ख्याल से जो चीज़ सीखनी चाहिए वो ये भी है कि जद्दोजहद मुसलसल है, तमाम अंबिया, उसके बगैर तो कामयाबी है ही नहीं। उसके बगैर कामयाबी नहीं है। अगर आप शॉर्टकट से फॉर एग्जांपल चले भी जाते हैं तो कब तक आप एडजस्ट कर सकते हैं? एट द एंड आपका जो स्किल्स हैं, आपकी जो मेहनत है, वही काम आती है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब तो पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग का जो है वो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको क्या लगता है कि नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे किस तरह से करियर काउंसलिंग की अवेयरनेस दी जाए, स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी, और इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जाए? तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या मतलब कि स्टेप्स करने चाहिए कि स्टूडेंट्स को भी आइडिया हो कि हमने एक प्रोफेशनल लेवल पे किसी से पूछना है कि हम आगे क्या करें, अपने इंटरेस्ट शेयर करें, ताकि उनको फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े? तो क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं? पहले हम ये समझ लें कि ये, जैसे मैंने कहा ना, कि आपको 3 डिफरेंट स्टेजेस पे, एक आपको हाई स्कूल लेवल पे चाहिए था, एक आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे चाहिए था, और तीसरी करियर काउंसलिंग चाहिए होती है व्हेन यू वांट टू स्विच योर करियर,
विच इज मिड Right. कैरियर विल बी आपको, बस तो आप 35-40 के होते हैं, आप कहते हैं मैंने अभी कोई ये कैरियर छोड़ के और काम करना शुरू चाहता हूँ, जॉब कर लिया, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो इन 20 में कितने लोगों की जॉब्स, कितने लोगों के बिजनेस खराब हुए हैं, जॉब खत्म हुई है। तो अभी इन तमाम लोगों को अपना कोई मिड कैरियर कोर्स करेक्शन भी तो करनी है ना। ये वो हाई स्कूल लेवल के या यूनिवर्सिटी लेवल के तो लोग नहीं है, ये तो प्रोफेशनल्स थे अपने अपने काम में। 5 साल से लेकर 20-25 साल तक की उनके तजर्बे थे, बट स्टिल नाउ दे हैव टू। तो ये थर्ड टियर है प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग का। गवर्नमेंट पे हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो हमारी बॉडी है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, विच कंट्रोल्स एंड मेक्स पॉलिसीज फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस। जो हमारे स्टूडेंट्स जो भी ग्रेजुएट करते हैं, जो इल्यूमिनाइज हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के, जिन यूनिवर्सिटियों में तो है उनमें भी, जिनमें नहीं है उनके स्टूडेंट्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फीडबैक दें अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज को। जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं, अब आपका जीपीए का प्रेशर खत्म है, अब आपको कोई डर नहीं है कि कोई आपकी डिग्री या आपका जीपीए खराब करेगा। तो अब आप फीडबैक दें, लिखें अपनी यूनिवर्सिटी को, जो भी उनकी वेबसाइट है उनमें जो उनका पोर्टल है HEC को लिखें कि जी हर यूनिवर्सिटी में कैरियर काउंसलिंग के प्रोफेशनल तजर्बाकार डिपार्टमेंट होना चाहिए और अपने अपने तजर्बे शेयर करें। देखिए इंफीडबैक के बगैर गवर्नमेंट कभी मूव नहीं करती होती। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट इंसान ही है। उनको कोई बताएगा कि ये जरूरत है तो ये काम होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप 1947 से थे। 2000 में जब ये CNGs का एकदम बड़ा बूम आया तो थोड़ा सा ये सेक्टर अनरेगुलेटेड था। उस वक्त की गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया। उन्होंने कहा जो भी पेट्रोल पंप, जो भी CNG स्टेशन होगा उसमें वॉशरूम होगा, लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, उसमें एक छोटी सी मस्जिद या नमाज की जगह होगी, उसमें एक आपका कन्वीनियंस स्टोर होगा। अब आप पाकिस्तान में पूरे में देख लीजिए, जो भी पेट्रोल पंप्स हैं आपके, उन पे तमाम जो हाईवेज पे हैं, ये 3 चीजें होती हैं। एकदम आपकी ट्रैवल में कन्वीनियंस ऐड हो गई है। इससे पहले हर जगह ये मौजूद नहीं होता था। तो किसी ने फीडबैक दिया, लोगों ने कंटिन्यूस, अगर जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर जाएं, जब उनको 1-2 साल जब वो जाएं, अपने काम देखें और जो भी उनको मसाइल महसूस हों ड्यूरिंग देयर करियर्स, वो अपनी यूनिवर्सिटीज को फीडबैक दें कि देखें जी हमारा ये डिस्कनेक्ट है। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में मैं जो जहाँ पढ़ा रहा हूँ, 2-3 वो टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज हैं। वहां पर वो खुद अभी भी एडमिट करते हैं कि हमारा इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज अभी भी वीक है। I'm telling you of the top of the line universities. I'm not talking of second rung and second tier universities. I'm telling you जिन यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूँ वो पाकिस्तान की पहली 4-5 में आती है। वो ये महसूस करते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है और इंडस्ट्री हमसे राब्ता नहीं करती। सो उनकी एजुकेशन एक साइलोज में हो रही है। उनके स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि इंडस्ट्री में इस वक्त नए ट्रेंड्स क्या हैं। तो जिस दिन पहले दिन लड़का जॉब पे जाता है, बच्चा या बच्ची, कहते हैं मैं तो जो पढ़ के आया हूँ उसकी तो आधा यहाँ पर एप्लीकेशन ही नहीं है, दुनिया तो उससे आगे जा चुकी है। तो ये जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे, HEC को फीडबैक दें, स्टूडेंट्स अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज को फीडबैक दें, जो भी एलुमनाइज की बॉडीज हैं वहां पर जब अपने कोई एनुअल फंक्शन अगर वो होल्ड करते हैं तो प्रेशराइज करें कि जी हमें ये चीजें हमने महसूस की हैं। देखिए लाहौर की जो लम्स है या कराची का IBA है, वो IBA और लम्स क्यों मशहूर है या वो क्यों उनकी रैंकिंग और उनकी ग्रेडिंग बेहतर है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट देम? There are just 2 things special about them. One, वो पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट होनहार तरीन, लायक तरीन स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी इनटेक है। तो आपने बेहतरीन बच्चे को लेके थोड़ा सा पॉलिश करते हैं, वो और अच्छा हो जाता है। दूसरा उनका ये है, IBA ये 60s का बना हुआ है, लम्स को बने भी ऑलमोस्ट अभी 30 ईयर्स होने वाले, 30 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, 88 की बनी हुई है। उनके इल्यूमिनाइज अच्छी अपॉइंटमेंट्स पे हैं। वो अपने अपने जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है वो उनको असिस्ट करते हैं, उनको कोच करते हैं, उनको एक्चुअली उनका हाथ पकड़ के जॉब में एंट्री, जी उनको वो जॉब में एंट्री लेवल पे उनको असिस्ट करते हैं। सो क्या होता है, IBA वाला को ले आता है, IBA वाले को प्रमोट करता रहता है। सो एकदम पब्लिक की निगाह में लगता है कि जी IBA और लम्स और नस्ट, ये तो कि जी क्या बात है, ये चीज पंजाब यूनिवर्सिटी भी कर सकती है, ये गोमल यूनिवर्सिटी भी कर सकती है। एक तो आपने अपनी सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप करनी है ना। मैं इस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, मैंने खुद भी अच्छा होना है और मैंने मेरे बाद के आने वाली क्लासेस हैं, मैंने उनके भी तो जो जायज हेल्प है
मैं आपको Right. बाय नो मीन्स आई एम नॉट सेइंग जो नाजायज या अनफेयर मीन्स है, बट ये होता है कि पास में आपको कोच करना पड़ता है कि भाई इस जॉब में तुम अप्लाई कर रहे हो, तुम सीवी में ये लिखना, तुम ये इंटरव्यू में तैयार इस तरह होके आओ, ये भी एक Right. क्लियर मीन्स में आता है। और सर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जब स्टूडेंट्स को प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाता है, उनको फील्ड की चीज़ें सिखाई जाती हैं, ना सिर्फ किताबें पढ़ाई जाएँ बल्कि उनको ये भी सिखाया जाए कि जब आपने फील्ड में जाना है तो आपने टेक्निकल काम कैसे करना है। अगर आप मीडिया के ग्रेजुएट हो, आपको कैमरा चलाना आना चाहिए। अगर आप आईटी को, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, ना कि सिर्फ आपने किताबें पढ़ ली हैं, वही मैट्रिक और इंटर एफएससी वाला हिसाब है। तो जब एक बच्चा, एंड देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर सेशंस किए जाते हैं, जहाँ पर डिफरेंट कंपनी से लोगों को बुलाया जाता है कि आप यहाँ पर आके इंटरव्यूज़ लें, ऑडिशंस करें, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के करियर के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ, एंड आई होप सो शुक्रिया आपका। कि वेलकम, एंड आई होप सो कि जो हमारे व्यूअर्स हैं पीएनवाई के, उन्होंने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा, बिकॉज होल सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। अगर आप मैट्रिक लेवल पे हैं, इंटर लेवल पे हैं, किसी भी लेवल पे हैं, तो करियर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस हमेशा ही आपकी लाइफ में रहती है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं। तो बजाय इसके कि आप इधर उधर की बातें सुन के या पीयर प्रेशर में आके कुछ डिसीजन लें, इट्स बेटर फॉर यू टू गो टूवर्ड्स करियर काउंसलर एंड गेट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। Thank you so much again, sir, for giving time to us. बहुत And शुक्रिया। थैंक यू। एंड अपनी ऑडियंस में ये कहना चाहूँगी कि हमेशा कोई भी स्टेप लेने से पहले किसी प्रोफेशनल इंसान से आप ज़रूर कांटेक्ट करें, बिकॉज पास्ट जो है वो कभी वापस नहीं आता, और हमेशा कोई भी स्टेप लेने से पहले ज़रूर उसके प्रॉस एंड कॉन्स देख लेने चाहिए, और नेक्स्ट फ्यूचर में क्या आने वाला है, किसका स्कोप है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।